रामन इफेक्ट के शोधक चंद्रशेखर वेंकट रामन अर्थात सर सीवी रामन भारत के महान भौतिक वैज्ञानिक थे। दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित तिरुचिरापल्ली के एक ब्राह्मण परिवार में 7 नवंबर 1888 को उनका जन्म हुआ था। Sir C.V. Raman was awarded the Nobel Prize in the year 1930 for his outstanding work in the field of light. He also has the distinction of being the first Asian to receive the Nobel Prize in the science. Audio Jungle. Audio Jungle. Respected Principal Sir, Vice Principal Ma'am, HM Sir, my worthy colleagues and your children. Today, on the day of National Science Day, I would like to introduce the theme of the National Science Day for year 2021, which is Future of Science, Technology, Innovation, Impacts on Education, Skills and Work. This day is celebrated under the Department of Science and Technology, and the Union Minister for Science and Technology is Honorable Dr. Harshvardhan. He is the chief patron for science and technology in India. Science and Technology was established in May 1971 with the objectives of promoting new areas of science and technology and to play the role of a nodal department for organizing, coordinating and promoting science and technology activities in the country. Now we should know about the objectives of celebrating National Science Day. National Science Day is being celebrated every year to widely spread a message about the significance of scientific applications in the daily life of the people, to display all the activities, efforts, and achievements in the field of science for human welfare, to discuss all the issues and implement new technologies for the development of the science, to give an opportunity to the scientific-minded citizens in the country, to encourage the people as well as popularize the science and technology. Next, we should know why we should care about science. We should utilize and take care of the gift of science for the sake of welfare of one and all. Science provides us with new inventions and discoveries which are very necessary for these days. We all should be very careful about that. Science should not be utilized for diminishing humanity, but should always be utilized for the sake of humanity. Now I would like to share a little bit of knowledge about program for science students. One of them is Kishore Vaigyanik Protsahan Yojana, shortly called as KVPY. The objectives of the program are to identify students with talent and aptitude for research, help them realize their potential in their studies, encourage them to take up research careers in science, and ensure the growth of the best scientific minds for research and development in the country. Next, I would like to tell about Science Olympiad program. This is a National Science Olympiad program which covers mathematics and science, including astronomy, which is operational in the country. These programs aim at promoting excellence in science and mathematics among pre-university students. The next program that I am talking about is National Children's Science Congress. This is an opportunity for brilliant young scientists 10 to 17 years of age group. This was started since 1993 to popularize the method of science with following steps. Work in teams under a guide on an identified theme. Select a problem from the neighborhood. Develop a hypothesis
and conduct field research, see patterns in data and prepare a report, present findings before peer group in one's own language. With the trust that you would like to participate in these programs with full zeal and enthusiasm, you will include science in your daily life. You will also develop a scientific temperament and aptitude, and that you will have fun in learning science. With this hope, I stop myself. Thank you one and all. Thanks a lot. Today, on the occasion of Science Day, we are going to perform an experiment on which we are seeing the mixing of different wavelengths of color by which we are making white light. So this was also the basis of Raman's effect, Dr. C.V. Raman's experiment in which he shows us that how water scattered blue light more than any other color. That's why water appeared as blue, not white. So here we have different filters, different color filters. So we are making mixing colors and making white light. First we will mix green, red and blue filter. Here we can see that when red and blue mixes, it makes pink color, and when blue and green mixes, it makes peacock green color, and when all colors mix, it will make white light. So it shows that different wavelengths of lights can make one single white light. So now we will see that how other colors also make white light. So if we add magenta and peacock green color, peacock blue color, we can here also see a white light. So this is the experiment in which we have seen that how white light is formed by different colors of light. Thank you. सीवी रमन आधुनिक भारत के एक महान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अपना अति महत्वपूर्ण योगदान दिया और अपनी अनूठी खोजों से भारत को विज्ञान की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान दिलाई। रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट सीवी रमन की अद्भुत और महत्वपूर्ण खोजों में से एक थी, जिसके लिए इन्हें साल 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वहीं अगर सीवी रमन ने यह खोज नहीं की होती तो शायद हमें यह कभी पता ही नहीं लग पाता कि समुद्र के पानी का रंग नीला क्यों होता है। और इस खोज के माध्यम से ही लाइट के नेचर और बिहेवियर के बारे में भी यह पता चलता है कि जब कोई लाइट किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कि सॉलिड, लिक्विड या गैस से होकर गुजरती है तो उसके नेचर और बिहेवियर में बदलाव आता है। वास्तव में उनकी इन खोजों ने विज्ञान के क्षेत्र में भारत को एक नई दिशा प्रदान की, जिससे देश के विकास को और भी बढ़ावा मिला। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि सीवी रमन को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और लेनिन शांति पुरस्कार समेत विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण कामों के लिए तमाम पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। आइए जानते हैं भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन के जीवन से जुड़ी कुछ बातें। प्रारंभिक जीवन। दक्षिण भारत के तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में 7 नवंबर 1888 को भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन एक साधारण से ब्राह्मण परिवार में जन्मे। वो चंद्रशेखर अय्यर और पार्वती अम्मल की दूसरी संतान थे। उनके पिता चंद्रशेखर अय्यर एवी नरसिम्हा राव महाविद्यालय विशाखापट्टनम में फिजिक्स और गणित के एक प्रख्यात प्रवक्ता थे। उनके पिता को किताबों से बेहद लगाव था। उनके पिता को पढ़ना इतना पसंद था कि उन्होंने अपने घर में ही एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बना रखी थी। हालांकि आगे चलकर इसका फायदा सीवी रमन को मिला। इसके साथ ही वो पढ़ाई लिखाई के माहौल में पले और बड़े हुए, यानी कि उनका बचपन पढ़ाई लिखाई के माहौल में ही बीता था। वहीं सीवी रमन ने छोटी सी उम्र में ही अंग्रेजी साहित्य और विज्ञान की किताबों से दोस्ती कर ली थी और फिर बाद में उन्होंने विज्ञान और रिसर्च के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित किए और भारत को विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। सीवी रमन बेहद तेज बुद्धि के एक होनहार और प्रतिभाशील छात्र थे। उनकी पढ़ाई में शुरुआत से ही गहरी रुचि थी। वहीं उनकी किसी चीज को सीखने और समझने की क्षमता भी बेहद तेज थी। यही वजह है कि उन्होंने महज 11 वर्ष की उम्र में ही विशाखापट्टनम के सेंट एलोयसियस एंग्लो इंडियन हाई स्कूल से अपनी 10वीं की परीक्षा पास की, जबकि 13 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने 12वीं की परीक्षा भी पास कर ली थी।
सीवी रमन शुरुआत से ही पढ़ने में काफी अच्छे थे, इसलिए उन्होंने अपनी 12वीं की पढ़ाई स्कॉलरशिप के साथ पूरी की। इसके बाद उन्होंने साल 1902 में प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में एडमिशन लिया और वहीं से साल 1904 में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री प्रथम श्रेणी में हासिल की। सीवी रमन ने इस दौरान पहली बार फिजिक्स में गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया था। इसके बाद उन्होंने साल 1907 में मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए मद्रास यूनिवर्सिटी में ही एमएससी में एडमिशन लिया। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने फिजिक्स को मुख्य विषय के तौर पर चुना। हालांकि वे इस दौरान क्लास में कम ही आते थे, क्योंकि उन्हें थ्योरी पढ़ने के बजाय लैब में नए नए प्रयोग करना पसंद था। उन्होंने अपनी एमएससी की पढ़ाई के दौरान ही ध्वनिकी और प्रकाशिकी यानी कि अकॉस्टिक्स एंड ऑप्टिक्स के क्षेत्र में रिसर्च करना शुरू कर दिया था। वहीं उनके प्रोफेसर आर.एस. जोन्स भी उनकी प्रतिभा को देखकर काफी प्रभावित हुए और उन्होंने सीवी रमन को उनकी रिसर्च को शोध पेपर के रूप में पब्लिश करवाने की सलाह दी, जिसके बाद साल 1906 में लंदन से प्रकाशित होने वाली फिलोसॉफिकल मैगजीन में उनका शोध प्रकाश का आणविक विकिरण को प्रकाशित किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान वे महज 18 वर्ष के थे। करियर की शुरुआत। मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद सीवी रमन की अद्भुत प्रतिभा को देखते हुए कुछ प्रोफेसर्स ने उनके पिता से हायर स्टडीज के लिए उन्हें इंग्लैंड भेजने की सलाह दी, लेकिन सीवी रमन का स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से वे आगे की पढ़ाई के लिए विदेश नहीं जा सके। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार की तरफ से एक परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें सीवी रमन ने भी हिस्सा लिया और वे इस परीक्षा में सफल हुए। इसके बाद उन्हें सरकार के वित्तीय विभाग में नौकरी करने का मौका दिया गया और फिर कोलकाता में उन्होंने एक अकाउंटेंट के तौर पर अपनी पहली सरकारी नौकरी ज्वाइन की। हालांकि इस दौरान भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च करना नहीं छोड़ा। वे कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस लैब में अपनी खोज करते रहे। नौकरी के दौरान जब भी उन्हें समय मिलता वे अपनी खोज में लग जाते थे। साल 1917 में उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस लैब में मानद सचिव के पद को ज्वाइन कर लिया था। वहीं इसी साल उन्हें कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर का भी जॉब ऑफर मिला, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और वे भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के तौर पर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में अपनी सेवाएं देने लगे और अब वे अपनी रुचि के क्षेत्र में काम करके बेहद खुश थे। इसके बाद साल 1924 में सीवी रमन को ऑप्टिक्स के क्षेत्र में उनके सराहनीय योगदान के लिए लंदन की रॉयल सोसाइटी का सदस्य भी बनाया गया। रमन इफेक्ट की खोज। रमन प्रभाव की खोज उनकी वो खोज थी जिसने भारत को विज्ञान के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान दिलवाई। उन्होंने 28 फरवरी 1928 को कड़ी मेहनत और काफी प्रयास के बाद रमन प्रभाव की खोज की। उनकी इस खोज से न सिर्फ इस बात का पता चला कि समुद्र के जल का रंग नीला क्यों होता है, बल्कि यह भी पता चला कि जब भी कोई लाइट किसी पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरती है तो उसके नेचर और बिहेवियर में चेंज आ जाता है। प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका नेचर ने भी इसे प्रकाशित किया। वहीं उनकी इस खोज को रमन इफेक्ट या रमन प्रभाव नाम दिया गया। इसके बाद वे एक महान वैज्ञानिक के तौर पर पहचाने जाने लगे और उनकी ख्याति पूरी दुनिया में फैल गई। मार्च 1928 में सीवी रमन ने गलोर स्थित साउथ इंडियन साइंस एसोसिएशन में अपनी इस खोज पर स्पीच भी दी थी। इसके बाद दुनिया की कई लैब्स में उनकी इस खोज पर रिसर्च होने लगी। आपको बता दें कि उनकी खोज के द्वारा ही लेजर की खोज संभव हो पाई, जिससे अब रसायन उद्योग और प्रदूषण की समस्या आदि से रसायन की मात्रा पता लगाने में भी मदद मिलती है। सीवी रमन द्वारा की गई ये खोज वाकई में एक अतुलनीय खोज थी। इस खोज के लिए 1930 में उन्हें प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल से भी नवाजा गया। उनकी इस महान खोज के लिए भारत सरकार ने 28 फरवरी के दिन को हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाने की भी घोषणा की। सीवी रमन ने लोक सुंदरी नाम की कन्या को वीणा बजाते हुए सुना था, जिसे सुनकर वे मंत्रमुग्ध हो गए थे और इसके बाद उन्होंने लोक सुंदरी से विवाह करने की इच्छा जताई थी। वहीं इसके बाद परिवार वालों की रजामंदी से वे 6 मई साल 1907 को लोक सुंदरी अम्मल के साथ शादी के बंधन में बंध गए, जिनसे उन्हें चंद्रशेखर और राधा कृष्णन नाम के 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। आगे चलकर उनका बेटा राधा कृष्णन एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री के रूप में मशहूर हुआ। भारत के महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन को विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदानों के लिए कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया। सीवी रमन को साल 1924 में लंदन की रॉयल सोसाइटी का सदस्य बनाया गया था। साल 1954 में सीवी रमन को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। 1957 में सीवी रमन को लेनिन शांति पुरस्कार दिया गया। महान वैज्ञानिक सीवी रमन ने अपनी जिंदगी में ज्यादातर टाइम लैब में रहकर नई नई खोज और प्रयोग करने में बिताया। वे 82 साल की उम्र में भी
रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर में अपनी लैब में काम कर रहे थे। तभी अचानक उनको हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से वे गिर पड़े और 21 नवंबर साल 1970 को उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। सभी को नमस्कार। प्रतिवर्ष 28 फरवरी को हमारे देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन ही सन 1928 में रमन इफेक्ट की खोज भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा की गई थी। इनकी इस महान उपलब्धि के लिए इन्हें सन 1930 में नोबेल पुरस्कार व सन 1954 में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। बच्चों, विज्ञान दिवस मनाने का उद्देश्य न केवल इस महान विभूति को याद करना व सम्मान देना है, बल्कि लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना भी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण वैज्ञानिक विधि अपनाने से उत्पन्न होता है। इस विधि के अंतर्गत सबसे पहले समस्या की पहचान की जाती है। सभी आवश्यक तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है। इन तथ्यों के आधार पर परिकल्पना बनाई जाती है और फिर उस परिकल्पना को परखा जाता है। अगर परिणाम सकारात्मक हों तो परिकल्पना को स्वीकारा जाता है। इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना कहते हैं। जबकि अवैज्ञानिक दृष्टिकोण के तहत हम किसी भी परिकल्पना पर बिना जांचे हुए विश्वास करने लगते हैं। अभी हाल में ही कोविड-19 के अगेंस्ट जो वैक्सीन बनी है, उसे बनाने में पूर्ण वैज्ञानिक विधि का उपयोग किया गया है। अगर हम वैज्ञानिकों के जीवन में दृष्टिपात करें तो हम पाएंगे कि प्रत्येक वैज्ञानिक ने कुछ नया करने की कोशिश की है और गलतियां करते करते ही वे नई खोजें कर पाए हैं। इसी तरह बच्चों, आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए अपने गुणों को पहचानना है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण अवश्य होते हैं। यदि हम एक मछली को उसकी पेड़ पर चढ़ने की योग्यता से जांचेंगे तो जिंदगी भर यह सोचते रहेंगे कि मछली तो बड़ी मूर्ख है, जबकि मछली का असली गुण उसका तैरना है। उसी प्रकार एक बंदर की परख उसके पेड़ पर चढ़ने के गुण से की जानी चाहिए, ना कि उसकी तैरने की कला से। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार आप ही अपनी भूख का सही सही आकलन कर सकते हैं, उसी प्रकार आप में सन्निहित गुणों का सही सही आकलन आपके द्वारा ही किया जा सकता है। अन्य व्यक्ति जो आपके जीवन से जुड़े हुए हैं, वे आपके बारे में केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। अतः अपने आप पर पूर्ण विश्वास रखते हुए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जीवन के प्रति अपनाते हुए अपने वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स का सही सही आकलन कीजिए और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को अपना संबल बनाते हुए प्रगति पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। यही जीवन में सफलता का मुख्य रहस्य है। अंत में मैं गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए श्लोक के अनुसार जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए आचरण करने की अपील आप सबसे करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यद्यताचरति श्रेष्ठत्व देवेतरो जनः सह यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात जैसा आचरण श्रेष्ठ लोग दुनिया में करते हैं, उनका अनुसरण जन सामान्य करता है। अगर हम श्रेष्ठ कार्य करते हुए अपना आदर्श समाज के अन्य लोगों के लिए प्रस्तुत कर पाएं, तो यही सही अर्थों में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने की सार्थकता को और महान वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि को
व्यक्त करेगा। धन्यवाद। जय हिंद। Very warm good morning to all of you. Respected Principal Sir, Vice Principal Ma'am, learned colleagues and all my dear students. As you all know that today we are celebrating National Science Day on the theme Future of STI, that is Science, Technology and Innovation, and its impacts in the field of education, skills and work. During the pandemic and even today, we all are in touch with each other just because of advancement in the field of science and technology only. I would like to extend my hearty thanks to Principal Sir and Vice Principal Ma'am for their motivation. I would also like to thank Head of the Science Department, Mr. Al-Sood, for his guidance, and to all my worthy colleagues of Science Committee for their active participation. I would like to pay my special thanks to Shranjit Sharma of 11th B and Rakshit Nagar of 7th C for their participation in this program. At last, I would like to thank one and all who have directly or indirectly helped and contributed to make this program a success. Once again, thank you to all.